So let us start. So we will start with the Coulomb's law. So state and explain the Coulomb's law. Coulomb's lawचं स्टेटमेंट माहिती तुम्हाला 11th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही बघितलं. Who will tell me the statement? बोला. Coulomb law काय स्टेट करतो बघा. It states that the force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब क्या है? Suppose there are two charges. Okay, so there is a charge Q1, okay, and this is Q2. So this is the distance of separation between them. Let that distance be R. Then the force of interaction, you can say, is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. So it is directly proportional to Q1, Q2, and F is inversely proportional to the square of the distance between them. Now if we club these two, we will get what? F is equals to some constant, okay, Q1, Q2 divided by R square. This constant is having the value 1 upon 4 pi epsilon naught. Now here epsilon naught is what? Bolo? Permittivity of free space or vacuum. Okay, epsilon naught is the permittivity of the free space or vacuum. So what is the significance of this term? Who will tell me the significance? Last year I have explained the significance of the permittivity of the free space or vacuum. तुम्हाला हा लॉ कळला की बाबा दोन पॉइंट चार्जेस आहेत which are separated at some distance, then the force of interaction, that means it may be the force of attraction, it may be the force of repulsion. Now the force of attraction will be there if there are what? Unlike charges. Unlike means positive and negative charge. If there are like charges like positive, positive, negative, negative, then there will be the repulsion. You know that. Okay. Now, whatever the force of interaction F is there is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So if we write this, then we have to take the constant. That constant का value आता है 1 upon 4 pi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of the free space or vacuum. इसका significance बताओ अभी. Who will tell सर me? ये जो दो चार्जेस को एक सेपरेट एक डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखता है. नहीं, ये नहीं है significance. बाकी के लोग कुछ तो बोलो. मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया था. What is the significance of the permittivity of the free space or vacuum? It is what? It is the opposition. It is the opposition offered by the medium, okay, to the force of interaction. To the force of interaction. ठीक है. अभी इसका मीनिंग मैं बताता हूं. देखो, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम होता है वो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है, सबसे कम. इसका मतलब क्या? अपोजिशन. अपोजिशन सबसे कम है अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है और एयर में है. इसका मतलब अगर अपोजिशन कम है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा. That means epsilon naught, that is for free space or vacuum, is least. और उसके हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं? फोर्स ऑफ इंटरएक्शन क्या होगा बोलो? सबसे ज्यादा. ठीक है, सबसे ज्यादा. सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरएक्शन कहाँ पे होता है? अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है और स्पेस में है, यानी एयर में है. ठीक है, वैक्यूम स्पेस और एयर में है.
अभी अगर मैंने क्या किया, वो दो चार्जेस को लिया और उसको पानी में डाल दिया. Now pani is the medium, water is the medium. Okay. Now as soon as we are going to put these two charges into the medium, the force of opposition offered by the medium will be increased. तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब अगर कोई भी मीडियम है तो मीडियम में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम ज्यादा रहेगा. ओके, देन द सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम ज्यादा रहेगा देन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो ये सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम, सबसे कम. ओके, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है. ठीक है, आपको समझ में आ गया ये. आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने दो चार्जेस अभी सॉलिड मीडियम में डाल दिए वाटर की जगह, तो उसका परमिटिविटी क्या होगा, उसका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, और ज्यादा होगा. यानी उनका अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम और ज्यादा होगा, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और कम हो जाएगा. तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जब टू चार्जेस वैक्यूम में होते हैं और एयर में होते हैं तभी होता है. क्लियर? अरे आपको समझ में आया ये कंसेप्ट? यस सर. ओके, पिछले साल हमने पढ़ा था ना रे, तुम लोगों को आंसर क्यों नहीं आया इसका? हाँ, क्यों नहीं आया आंसर? ये किधर गया है जो मैंने इधर डायग्राम निकाला था, किधर गया है? पता नहीं, चलो तुम लोगों को पता है क्या डायग्राम है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ. तो ये हो गया स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कूलम्स लॉ. वी आर गोइंग टू सी द थियरी विच इज यूजफुल फॉर द एच.सी. वर्मा. एच.सी. वर्मा के लिए क्या क्या थियरी चाहिए वो हम देख रहे हैं. ओके, तो हमारा वो कैपेसिटर का पार्ट छूट गया था, तो उसीलिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं. नाउ कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ विल यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने अरुण गवली का एग्जांपल दिया था. डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे? सपोज दिस इज द स्टैटिक चार्ज क्यू, यानी ये अरुण गवली है. ओके, और ये इसका इलाका है. ओके, अभी इस इलाके में कौन जाएगा? कोई भी जाओ, निखिल जाएगा. तो निखिल क्या है? अभी टेस्ट चार्ज है. क्या है? टेस्ट चार्ज. तो निखिल निखिल को क्या पढ़ेंगे बोलो? टोले पढ़ेंगे. यानी इसके ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अभी ऑब्वियसली जब ये बाउंड्री पे होगा तो उसको सबसे कम टोले पड़ेंगे. इफ द टेस्ट चार्ज इज एट द बाउंड्री then the force experienced by the test charge will be minimum. और जैसे ये अंदर जाएगा और सीधा अरुण गवली के घर में जाके बैठ जाएगा तो वहां पे सबसे ज्यादा उसको टोले पड़ेंगे क्योंकि वो ज्यादा करीब गया है. ओके, तो force experienced by the test charge will be maximum when r is equals to 0. ओके, वो तो फोर्स कितना रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा अगर वो उधर जाके बैठ गया तो. ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन सुनो. इट इज डिफाइंड एज द रीजन. इट इज डिफाइंड एज the region around a static charge in which if the test charge comes, अगर टेस्ट चार्ज जाता है then it will experience what? बोलो. Then it will experience the force.
ठीक है, आपको ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ सर। ओके। यस सर। अभी इसका फॉर्मूला अगर मैं बोलूं आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड? फॉर्मूला बोलो, अरे बोलो। E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into static charge q divided by r square. So this is the formula for the electric field. ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को. This term is what? K. So you have the formula in terms of K as kq by r square. So kq by r square is electric field. Now if I ask you what is the relation between electric field and electric force? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था कूलम्स फोर्स का? के क्यू और ये क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये था. तो ये टर्म क्या है? ये ई है. ओके, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ई क्यू होता है. तो ई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा फिर? बोलो, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? एफ बाई क्यू हो जाएगा. अरे समझ में आ रहा है क्या तुमको? अगर मैं इसके डायमेंशंस पूछूं आपको, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द डायमेंशंस? अरे बोलो, फटाफट बोलो. डायमेंशंस ऑफ ई, न्यूटन पर कूलम, तो क्या होगा? ऊपर क्या होंगे? m1 l1 t-2, और नीचे चार्ज है. चार्ज क्या होता है? it होता है, i⁻1 t⁻1. so your final dimensions will be m1 l1 t-3 i⁻1. so these are the dimensions of electric field. आपको समझ में आ गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। एक मिनट. हाँ ओके, चैट किया क्या? मुझे लगा डाउट है इसलिए कोई तो बोला इधर. ठीक है ठीक है, ओके. तुमको समझ में आ गया है रोहन, या डाउट है? सर आगे। अभी देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन कैसे दोगे? अरे बोलो, आपको ऊपर डायग्राम भी दिखाया मैंने अभी. इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? कि वहां भाई कहाँ पे ये अरुण गौड़ी की दहशत ज्यादा होगी? कहाँ पे होगी? सर फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ, केप्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी अगर मुझे यहाँ देखो, अलग अलग पॉइंट है. यहाँ पे सपोज पी पॉइंट है, ठीक है. यहाँ पे क्यू पॉइंट है, और यहाँ पे सॉरी क्यू नहीं लेते, आर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्यू है. आर और एस पॉइंट है. तो कहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? एस पे. ओके, उसके बाद आर पे, और सबसे कम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे होगी. तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी उसको आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by the unit test charge. कौन सा टेस्ट चार्ज भाई? यूनिट टेस्ट चार्ज, ये ध्यान में रखो. यूनिट टेस्ट चार्ज बोले तो 1 कूलम ऑफ चार्ज. ओके, यूनिट टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट, ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन. ये आप लिखो, अभी मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ. ओके, सो इट विल नॉट कम इन द नोट्स, सो यू हैव टू राइट इट. ठीक है, मैंने बता दिया आपको ओरली. चलो आगे बढ़ते हैं. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या हमने देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड. उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर.
अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? लास्ट ईयर देखा हमने, बोलो। अरे बोलो, इन टर्म्स ऑफ के क्यू एंड आर, व्हाट इज द फॉर्मूला? के क्यू बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज टू फॉर्मूलाज, व्हाट इज द रिलेशन? क्या लिखूंगा मैं? V इज इक्वल्स टू E इंटू R और E इज इक्वल्स टू V बाय R. अरे देखो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो R से इसको, तो आपको क्या मिलेगा? ये V तो मिलेगा, तो यही किया मैंने इधर. और आप अगर डिवाइड करो V को R से, तो आपको E ही तो मिलेगा, वही किया मैंने इधर. अरे तुमको समझ में आया ये रिलेशन? हाँ सर. अगर मैं बोलूं V का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अभी इसका क्या आया था रे, याद है क्या? इसका न्यूटन पर कूलम आया था. इसका क्या आएगा फिर V का? न्यूटन मीटर पर कूलम. क्या आएगा? न्यूटन मीटर पर कूलम. इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वोल्टेज, वोल्ट. ठीक है. अरे आपको समझ में आ गया ये रिलेशन? अरे हाँ करो. सर. ठीक है. अभी देखो, यहाँ से कैपेसिटर चैप्टर चालू हो गया. अभी तक खाली क्या कर रहे थे? हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे. ठीक है, ये इतनी कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मेन टॉपिक, दैट इज लीकेज प्रोसेस. ये लीकेज प्रोसेस क्या है? ओके, उसको हम देखेंगे. तो पहले ध्यान से सुनो, मैं क्या इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सपोज दिस इज द कंडक्टर. एक कंडक्टर है, ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मैक्सिमम चार्ज, हाउ मच मैक्सिमम चार्ज can be put on the conductor placed in air. यानी ये कंडक्टर को मैंने एयर में प्लेस्ड किया है. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट वी कैन पुट ऑन दिस कंडक्टर, दैट वी नीड टू आंसर. तो ये मेरा क्वेश्चन है. आपका आंसर क्या है रे? अगर एक सपोज कंडक्टर है, उसके ऊपर अपन मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकते हैं? कौन बताएगा आंसर? बोलो, क्या क्या आंसर दोगे? अरे बोलो ना. अगर एक कंडक्टर है, उसके ऊपर मुझे चार्ज पुट करना है और वो एयर में है, तो मैं मैक्सिमम कितना चार्ज पुट कर सकता हूँ? कैसे रे? देखो, यहाँ पे मैं सपोज मैंने चार्ज पुट करना स्टार्ट कर दिया. मैं चार्ज पुट कर रहा हूँ, चार्ज पुट कर रहा हूँ, चार्ज पुट कर रहा हूँ. ठीक है. जब मैं चार्ज पुट करूंगा तो दो पैरामीटर्स विल इंक्रीज. टू पैरामीटर्स आर गोइंग टू इंक्रीज विद द डिपोजिशन ऑफ द चार्ज. पहला कैरेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या हो गया? मैंने चार्ज पुट करना स्टार्ट कर दिया, उसके उसके हिसाब से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सपोज यहाँ पे जो एयर है, आपको पता है एयर में क्या रहते हैं? मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स. एयर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एयर एटम्स. ओके. तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस. और उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अभी क्या हो गया? ये जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तुमको पता है कि कितने फोर्स रहते हैं दुनिया में? हाँ सर.
कौन कौन से रहते बोलो? ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सही बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उनमें से सबसे वीकेस्ट कौन है? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स रहता है। ध्यान से इस बात को समझो। तो ये दोनों के बीच का फोर्स है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। सपोज दैट फोर्स इज 100 न्यूटन। कितना है? 100 न्यूटन, ये हमने माना। नाउ एज वी आर पुटिंग द चार्ज ऑन दिस कंडक्टर, इसके ऊपर अपन चार्ज पुट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो जब हम 1 कूलम ऑफ चार्ज इसके ऊपर पुट करते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स will be gets increased by 1 न्यूटन। कितने से बढ़ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स? बाय 1 न्यूटन। तो हम इसके ऊपर कंटिन्यूसली चार्ज पुट कर रहे हैं। तो सपोज हमने क्या किया, 30 कूलम ऑफ चार्ज पुट कर दिया, तो कितना फोर्स हो जाएगा? 30 न्यूटन। अगेन वी हैव पुट 50 कूलम ऑफ चार्ज, फोर्स हो जाएगा 50 न्यूटन, कुछ नहीं होगा तभी भी। 70 न्यूटन, तभी भी कुछ नहीं होगा। 80 न्यूटन, तभी भी कुछ नहीं होगा। 100 न्यूटन, तभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं 101 न्यूटन ये कूलम ऑफ चार्ज पुट करूंगा, मेरा फोर्स कितना हो जाएगा? 101 न्यूटन। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबूजी? तो ये इलेक्ट्रॉन इट विल बी गेट्स डिटैच। तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ने होल्ड कर रखा था, उससे वो डिटैच हो जाएगा। इट विल गो इनटू द एयर। ओके, कहाँ पे जाएगा वो? एयर में जाएगा। अभी वो एयर में गया तो ये एटम इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट बोलो? आयन। वो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव रहता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया उसको, तो वो आयन में तब्दील हो जाएगा और आयन पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव। अरे तुमको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? अगर डाउट है तो पूछो। तो जैसे ही ये प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स और एयर एटम यू कैन से। ठीक है, जैसे ये होगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 101 कूलम चार्ज पुट करने का कोशिश कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ द डिपोजिशन ऑन दिस कंडक्टर, दिस चार्ज गो इनटू द एयर। कहाँ पे जाएगा ये? एयर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो इसको जाके मिलेगा, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होगा। इसका मतलब आप मैक्सिमम चार्ज अभी कितना पुट कर सकते हैं? 100 कूलम। इतना ही चार्ज आप पुट कर सकते हैं। अगर आपने 101 कूलम चार्ज पुट करने का कोशिश कर दिया, तो इट विल गो इनटू द एयर, एयर में चला जाएगा। ठीक है, so this is the answer of this question. It depends upon the which medium is present around this conductor and what is the force of interaction between the atoms and electrons of that particular medium. ठीक है, अरे आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? लीकेज प्रोसेस क्या होता है? लीकेज यानी ये अभी एक बकेट है, बकेट सपोज आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। उसमें अपन पानी कितना भर सकते हैं? जब तक कि वो पूरा फील ना हो जाए। एक बार वो पूरा फील हो गया, आप कितना भी पानी डालो, कहाँ जाएगा वो? बाहर जाएगा या बकेट में जाएगा? बाहर जाएगा ना। वैसे ही इधर होता है, कंडक्टर पे चार्ज पुट कर रहे कब तक? जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बराबर नहीं हो जाता, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, जैसे वो बराबर हो जाएगा, इट विल गो इनटू द एयर। सेम, क्लियर? अरे आपको समझ में आया है ये? एनी डाउट? नो सर। नहीं सर। ओके, तुमको समझ में तो आ रहा है ना ये जो चल रहा है वो? आर यू गेटिंग द थिंग्स? हाँ सर। हेलो? यस सर।
लेकिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पहले 1-2 लेक्चर में थोड़ा सा ये लगेगा, अलग लगेगा। अभी देखो यहाँ का कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? बोलो, कंक्लूजन इज व्हाट? Conclusion is what? Whatever the charge Q that we are going to store on this conductor is directly proportional to V, electric potential. देखो जैसे ही चार्ज बढ़ाता हूँ क्या बढ़ जाता है? V बढ़ जाता है। E भी बढ़ता है, लेकिन we are going to give the relation in terms of electric potential. अभी Q is equals to क्या लिखूंगा मैं, बोलो? Some constant into V. तो this constant is known as a capacitance. क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस? बोलो। अरे इसको Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C भी हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई V हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये मैं लिख सकता हूँ क्या? Whether this is true? Yes, sir. No. ये जो फॉर्मूला है, ये जो बता रहा है वैसा नहीं है। यानी कैपेसिटेंस इज, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ये गलत है। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट ना। सो सिंस दिस टर्म इज कांस्टेंट, अभी तुमको ओम्स का लॉ बताता हूँ। V इज इक्वल टू IR है। अरे है क्या? नहीं है? है ना सर? हाँ, तो अगर मैं R का वैल्यू लिखूं V बाय I, तो आप बोलोगे क्या R is directly proportional to V, R is inversely proportional to I? No. What you have? You have the relation R is directly proportional to L. आपको याद आया क्या? और R is inversely proportional to area of its cross section. So these are the parameters on which resistance of the material depends. It depends on the length of the material, area of its cross section and nature of the material. कौन सा material है भाई? Whether it is conductor, semiconductor or insulator. तो ये फॉर्मूला से तुमको क्या पता चलता है? You cannot state like this. Okay, this is a constant term. तो हमेशा याद रखो, अगर टर्म कांस्टेंट है वॉट एवर द गिवन, तो दैट कांस्टेंट टर्म इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स व्हिच आर गोइंग टू रिलेट दिस। V एंड I पे R डिपेंड नहीं रहता है। ओके, वैसे इधर क्या है? बोलो। Q एंड V पे C डिपेंड नहीं रहेगा। तो भाई क्वेश्चन है मन में कि भाई किस पे डिपेंड रहेगा? ओके, किस पे डिपेंड रहेगा वो देखते हैं आगे किस तरह। अरे नहीं है इधर, चलो वो बाद में है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको बाद में कि किस पे डिपेंड रहेगा। पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपेसिटर को मुझे डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं? बोलो। अरे बोलो। I want to define the capacitor. Capacitor is defined as the device. It is defined as the device which is used to store. क्या स्टोर करने को भाई? एन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज स्टोर करने को जो डिवाइस अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस is the property of the capacitor. ये इसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये डिवाइस इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर पाता है। आपको समझ में आया है? अरे आया है कि नहीं?
अरे कळलंय का तुम्हाला? So we have Q is equals to CV, C is equals to Q by V. ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी को पता है? अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, कैपेसिटेंस का ऐसे यूनिट नहीं पता तुमको? पिछले साल देखा ना हमने, ये सारी बातें देखी थी, ये कैपेसिटर भी देखा था मेरे ख्याल से। कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या है? फैरेड। तो 1 फैरेड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 कूलम। 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। तो अगर मैं बोलूं हाउ विल यू डिफाइन द 1 फैरेड, तो कैसे डिफाइन करोगे? द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1 फैरेड इफ the capacitor is able to store the charge of 1 coulomb by applying the potential difference of 1 volt across its plates. Okay, अभी हम क्या करेंगे? We are going to obtain an expression for the capacitance of the parallel plate capacitor. Okay, उसके लिए हम डेरिवेशन देखेंगे अभी। ये है सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपको दो प्लेट्स दिख रहे हैं, 1 प्लेट 2 प्लेट। ओके, वो कैसे है? पैरेलल है। ओके, वो ये क्या है? ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है उनके बीच में। सपोज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। क्या है? कैपिटल ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट। अभी एक प्लेट के ऊपर मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव। 1 plate I am going to charge positive and 1 plate I am going to charge negative. जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना ही इधर होगा। तो डायग्राम में ये केयरफुली, ये अगर थ्योरी में आता है तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज मैंने दिए है उतने ही इधर नेगेटिव देने के। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कैसे डिराइव करता हूँ। ओके, अभी देखो, आपको ये पता है कि ये यहाँ पे एवरीवेयर पॉजिटिव चार्ज है। इनसाइड में भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा इधर। ओके, क्योंकि चार्ज इज एवरीवेयर ऑन दिस प्लेट। यहाँ पे भी निगेटिव ही होगा इफ यू कंसिडर इनसाइड ऑल्सो, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, रेडियली आउटवर्ड। और इस निगेटिव का कैसा होगा? ऐसा। ओके, इसका भी ऐसा, इसका भी ऐसा। तो दोनों का क्या होगा? ऐड होगा। तो वी आर गोइंग टू ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, यानी अगर इधर एक चार्ज आ गया बीच में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर धक्का देगा और ये भी इसको इधर ही धक्का देगा। ओके, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अरे तुमको पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एंड अप इन द नेगेटिव चार्ज। अरे पता है कि नहीं है ये? बोलो। हाँ सर। हाँ, पता तो है सर। यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसका इधर। तो यहाँ पे चार्ज आया तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, वो जाएगा इधर। किधर? इधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अभी लिखेंगे, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय E1, सो दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आप बोलोगे सर ये किधर से लाते हो आप एक्सप्रेशन? ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। दिस एक्सप्रेशन, द डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू सी इन द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये करके चैप्टर है HC वर्मा में, उधर आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ये क्या बता रहा है? देखो, ये पहला जो प्लेट है, सपोज ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। इस 1 प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, उसका मैग्नीट्यूड ये दे रहा है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अभी आप बोलोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? अरे भाई, सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया, सॉरी, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया।
इसका ये प्लेट है ना, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यानी इसके ऊपर कितना भी चार्ज होगा उसको अपन एरिया से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर? और ये तो टर्म आपको पता ही है, लेक्चर के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। Okay, now similarly if I write the electric field due to the negatively charged plate, electric field अरे ये डेरिवेशन होगा क्या अपना? 1.5 मिनट है। एक काम करते हैं, फिर से 15 मिनट के लिए लेक्चर लेंगे क्या? अरे बोलो। बस हाँ तो फिर से रिक्वेस्ट ये करो, सेंड करो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये होगा, क्या होगा रे बोलो अभी फटाक से। E2 इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ओके, तो ये 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, मैंने इधर ऊपर एक्सप्लेन किया है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस E total is given by E1 plus E2 which will be equals to sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught। तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 3। अरे तुमको समझ में आया क्या मैंने क्या किया? दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड खाली क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक? नाउ वी नो दैट, क्या